और चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस से जो अहकामात गए थे उस पर अमल आवारी नहीं हुई। तो उस ताल्लुक़ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 महीने में रमज़ान का आगाज़ होगा, तो अभी से अगर रमज़ान के इंतज़ामात की मीटिंग बुलाई जाती है और अहकामात दिए जाएं कि रमज़ान के महीने में कारोबार करने वालों को जल्दी कारोबार बंद करने पर मजबूर ना किया जाए, क्योंकि वो तरावी को जाते हैं, नमाज़ पढ़ कर आते हैं। इसलिए अगर रमज़ान के इंतज़ामात की मीटिंग अगर बुलाई जाती है तो इससे काफ़ी सहूलत होगी। एंड द सेकेंड इशू विच आई हैज़ रेज्ड वाज अबाउट द फ्रूट मार्केट, सर. Now the season for mangoes will be coming, sir. I know the matter is sub judice, but this can be sorted out if the government comes forward and give the Patti passbook to the fruit market which has been established at Hazrat Pahadi Sharif ke paas mein. And also I had spoken about the IT park. So that also hasn't been spoken about, Honorable Chief Minister Saab, sir. And I have also spoken about the 2-bedroom housing which was allotted to the beneficiaries. In spite of getting the allotment letter and the names being in the list, they have not yet been handed over with the keys. And I've also mentioned about the old area where GHMC quarters and PWD quarters were there, we had constructed. Those flats are also not handed over, sir. So I need a clarification on that. I have also spoken about food adulteration. Honorable Chief Minister Saab haven't spoken anything about that. An important issue I had raised about the traffic problem of Hyderabad city. So I had requested for a meeting of city legislatures to be called so that we could give our suggestions regarding this. And about the Waqf land, sir. Sir, the CBCID inquiry was ordered, and I had requested to please speed up the CBCID inquiry and place the report of CBCID. So about that also nothing has been told, sir. Sir, I have also spoken about this religious tourism, sir. Pilgrimage, there is a need for provision for including the famous Gurudwaras of the city, also the famous churches like the Medak Church and also the Parsi temples, and also the Shia community Tabarukas at Bibi Ka Alawa, Khilwat Mubarak, Ashur Khana, Alawa Sartok, and also the famous dargahs can be included. So Honorable Chief Minister hasn't spoken about that, sir. Sir, also I have requested for speedy completion of Charminar pedestrianization. This pedestrianization project was started in 1991 and still it is pending, sir. I have also spoken about the summer contingency plan, sir, because summers are coming and then Ramzan is there. There are many unserved areas in the city, sir, where there is a scarcity of water. Pani nahi aata hai, so every time in summer and Ramzan time, the Waterworks Department gives some special tankers for supplying of waters to the identified localities and also few mosques. So I request that a meeting of this would be called, sir. I have also spoken about Yuva Vikasam guarantee, sir, Vidya Bharosa cards with financial assistance of 5 lakhs. Honorable Chief Minister Saab haven't spoken anything about that, sir. I have also spoken about this Praja Palana applications were received for ration cards. Sir, I would like to know how many applications were received to new ration cards now, apart from the applications pending before the present government, sir. Sir, lastly, sir, I have also spoken about this. I would like to know from Honorable Chief Minister, sir, I haven't spoken, but I'm speaking right now, sir, about this Kaleshwaram project, sir. Sir, the Telangana High Court has expressed its inability to spare a sitting judge for judicial inquiry. So now I would like to know which inquiry the government is going to order. Are they going to go for a CBI inquiry? Because we need to find out, sir. So many allegations we are reading, this happened, that happened. So I think it is the need that an inquiry should be ordered. If not CBI, at least CBCID or retired judge. But there has to be an inquiry so that the truth comes out. So I need the गरीब लोगों के लिए बहुत जरूरी है।
इसीलिए गौलीगुड़ा से लेकर फलकनामा, फलकनामे से लेकर चंद्रायन गुट्टे तक मेट्रो रेल डालने के लिए हम लोग आदेश दे चुके। और दूसरी बात रहा नागौल से लेकर एलबी नगर से लेकर ओवैसी हॉस्पिटल से लेकर चंद्रायन गुट्टा से लेकर P7 रोड से लेकर सीधा इंटरनेशनल हवाई जहाज अड्डा पे हम मेट्रो रेल ले जा रहे और एलबी नगर से हैत नगर तक हम मेट्रो रेल लेके जा रहे और कुकटपल्ली से आगे चंदानगर से लेकर BHEL और रामचंद्रापुरम तक भी हम मेट्रो आगे वहां पर भी हम आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और हम हाईटेक सिटी से लेकर गच्चिबौली वहां पर विप्रो जंक्शन से जो अमेरिका काउंसलेट सेंटर है वहां तक भी हम आगे ले जाने के लिए तेलंगाना सरकार ने पूरा अप्रूवल किए। ये पूरा रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को हम दे चुके हैं। केंद्र सरकार से हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं क्योंकि ये बजट केंद्र सरकार ने देना है, इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार से कुछ पैसे लेके ये मेट्रो रेल आगे ले जाने के लिए। हैदराबाद शहर का जो पिछले मेट्रो भी हम ही ने बनाया, ये भी मेट्रो आगे हम ही लोग बनाने का है। वहीं नहीं, एयरपोर्ट से कंदकूर में जो इससे पहले सरकार जो फार्मा सिटी बोले, हम आगे अच्छा डेवलपमेंट वहां लाने के लिए एयरपोर्ट से लेकर कंदकूर जो फार्मा सिटी के नाम पे जो जगह लैंड एक्वायर किए वहां तक भी हम मेट्रो ले जाने के लिए हमारा कोशिश है। हर तरीका से हैदराबाद शहर में आपको जानकारी है क्योंकि आप 7 बार MLA जीत चुके हैं। यहाँ के जनता, यहाँ के लोग आने वाले जाने वाले ये हैदराबाद मेट्रो सिटी को जितना जानते, ये हेरिटेज प्रिसिंक्ट्स कुली कुतुब शाही से लेकर चार मीनार तक कितना अच्छे सुंदर सुंदर बड़े बड़े महल से, ये सब सारे देखने के लिए दुनिया कोने कोने से यहाँ पर लोग आ रहे। इसीलिए हम लोग जो मूसी रिवर डेवलपमेंट, मूसी रिवर फ्रंट के नाम पे हम लोग आगे डेवलपमेंट करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग उठाए। उसी सिलसिले में हम लोग सरकार के तरफ से लंदन आए थे, आप भी हमारे साथ में शामिल हुए, जो एक्सपर्ट से हमारा मीटिंग हुआ था। इसीलिए गंडीपेट से लेकर उस्मान सागर, हिमायत सागर से लेकर नागौल से आगे 55.5 किलोमीटर्स मूसी एरिया, मूसी रिवर डेवलपमेंट, रिवर फ्रंट डेवलप करने के लिए हमारे सरकार पूरे कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का मदद ज़रूरी है, आपके मदद हम लेंगे। हैदराबाद शहर को हम इतना सुंदर शहर बनाएंगे, यहाँ दुनिया से, आप बेंगलुरु से, दिल्ली से, मुंबई से और किसी शहर से हम लोग कॉम्पिटिट नहीं करना चाह रहे। पूरी दुनिया में हमारे हैदराबाद शहर को इतना सुंदर शहर बनाना चाह रहा है। हमारे वक्त में जो आउटर रिंग रोड हम ही ने बनाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम ही ने बनाए, मेट्रो रेल हम ही ने बनाए, कृष्णा से पीने का पानी हैदराबाद शहर का आप और पी जनार्दन रेड्डी इसी असेंबली में चिल्ला के हैदराबाद शहर का, हैदराबाद लोगों के लिए जो पीने का पानी तकलीफ आप आवाज उठाए, तो कांग्रेस पार्टी ने कृष्णा से पानी लाए और गोदावरी से भी हैदराबाद शहर पीने का पानी हम ही लोग लाए। आगे भी हमारे जिम्मेदारी है। मैं यकीन से मेरे सरकार के तरफ से मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं पूरे तेलंगाना जनता को, 4 करोड़ लोगों को, हैदराबाद शहर को अगले लेवल पे हम लोग लेके जाने वाले हैं। इसीलिए जो हैदराबाद में अप टू आउटर रिंग रोड के इनसाइड जो शहर है अर्बन तेलंगाना, आउटर रिंग रोड से लेकर जो नया रीजनल रिंग रोड बनाने के लिए जो तैयारी हो रहे, वो सेमी अर्बन तेलंगाना, और रीजनल रिंग रोड से लेकर तेलंगाना बॉर्डर तक रूरल तेलंगाना 2050 मास्टर प्लान हम लोग बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अकबर साहब, हम लोग आगे तेलंगाना के लिए बड़ा नक्शा लेकर आने वाले हैं। ये हैदराबाद, ये तेलंगाना को दुनिया से में सबसे बड़ा सुंदर प्रदेश बनाने के लिए हमारा कोशिश जारी रहेंगे। आपका मदद हमेशा, जितने हम जो भी अच्छा किए आप तारीफ किए, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आगे भी आपके पार्टी से चुनाव हो गए, राजनीति चुनाव के समय पर आप कुछ भी बोलो, राजनीति हम सरकार बनाने के बाद सरकार चलाने के लिए इस प्रदेश को
आगे तरक्की करवाने के लिए हम लोग कोशिश जारी रहेंगे। आपके साथ जरूर लेता हूं। आप जो बात मुद्दे उठाए सब सारे मेरे कन रिकॉर्ड, और कुछ भी जो भी अगर बचा हुआ है मैं अलग मीटिंग बुलाऊंगा। आपसे अलग मीटिंग ले लूंगा। भारतीय जनता पार्टी का एमएलए भी मैं अलग बुलाऊंगा, और टीआरएस का भी केसीआर साहब को यहीं के इधर से मैं उनके लिए मैं इनवाइट कर रहा हूं। चंद्रशेखर राव जी भी एज ए लर्नड सीनियर एक्सपीरियंस्ड मेंबर ऑफ दिस हाउस, जो भी उन्होंने भी आगे तेलंगाना के लिए जो उनका सुझाव है हम लोग ले लेंगे। उनके लिए भी हम लोग वेलकम कर रहे हैं। और अकबर साहब हम लोग ये तय किए विथ स्पीकर परमिशन, और बहुत सारे छोटे छोटे जिले में बड़े बड़े कलेक्टर ऑफिस बनाए। हमारे वेंकट रेड्डी साहब चिट्ठी भेज रहे। इतना बड़ा शहर, कम से कम करोड़ के ज्यादा लोग हैं, कलेक्टर ऑफिस नहीं है हैदराबाद शहर के लिए, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए। हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस के जितने भी डिपार्टमेंट्स में एक एक कोने पे एक एक है। किसी को बुलाना है तो दूसरे दिन आएंगे। वो आज शुरू हो गए तो ट्रैफिक जाम में वो चलते चलते आए तक पूरा दिन खत्म हो जा रहा है। इसीलिए हमारा वेंकट रेड्डी साहब ये बोल रहे हैं हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस अच्छा मल्टीपर्पस न्यू कलेक्टर ऑफिस बनाने के लिए वो रिक्वेस्ट किया, उनके ऑफिसर रिक्वेस्ट किए। हम अकबर साहब हम हैदराबाद शहर के लिए अच्छा शानदार कलेक्टर ऑफिस बनाने के लिए भी इस मौके पे आप लोगों को मैं भरोसा दे रहा हूँ। इसीलिए हम कोई छुपा के कुछ काम करने के लिए हम नहीं सोच रहे। हम सबके सामने यहीं पर चर्चा करेंगे जो तेलंगाना के लिए अच्छा है, जो हम सोच सकते। हमारे सोच से भी अगर आगे आपका सोच कुछ रहा तो हम बेशक से आपका मदद लेंगे। इसमें तो कुछ आगे पीछे होने का कुछ नहीं है। इसीलिए मैं अकबर साहब को मैं एक ही यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारे तरफ से हर चीज हम आपकी मदद लेके ये तेलंगाना तरक्की के लिए हम लोग करने वाले हैं। అధ్యక్ష, చాలా